Hello everyone, welcome to this next edition of Market Ruburu. Today I have with me a trader from Delhi, Deepak Thakran. Everyone on social media or Twitter knows him quite well. He has been in the market for more than 20 years, and since last few years he has become a full-time trader. He is an IT graduate by education, and now a full-time trader. So for those who feel whether, everyone has a dream to become a full-time trader and how to go about it. He has been successful in doing that, and now he's only into trading. So welcome, Deepak. Hi, sir. Thanks for the introduction. So what are we going to talk about today? So today we are going to talk about putting into use cash and stocks at the same time. So basically, a cash secured approach to trade FNO, in which we are basically playing around the large cap FNO stocks and not looking to do the सट्टा बाजार जो usually करते हैं कि कॉल खरीद लो पुट बेच दो जो भी कर रहे हैं but a well defined structured way to approach market जिसमें we are basically generating alpha by doing some churning of the stocks and churning the cash around also. Yeah, and this is not nothing to do with very short term. This is a very sort of mid-term positional kind of trading, right? Yeah, this approach will be mechanical in nature basically कि support के around आप buying का attempt कर रहे हो filling up your position again and resistance के around आप उसी trade को exit करने की कोशिश कर रहे हो. So basically rotational basis पे एक trade आपका run होता रहेगा. So उसमें the capital size needed is decent only. And number of stocks also should be like 5 to 6 stocks में हम ये process को एक बार में run कर सकते हैं. Yeah. Okay, so let's start now. It looks to be a very interesting topic. Yeah. So I'll give a disclaimer that all the discussion is for educational purpose and इसमें कोई trade idea we are not giving out. It is a more discussion around the process that can be followed to generate alpha if someone is having stocks in cash and at the same time having enough cash in account to purchase more if needed. So I'll skip the bad part, which everyone knows. So basically, I'll start with the Dow theory वाला part. Simple सा एक बार discuss कर लेते हैं कि एक trend को हम define कर सकते हैं कि higher high formation है, higher low formation है. तो उससे start of uptrend है या फिर start of downtrend है. एक focus बन जाता है कि भाई इस stock को किस angle से देखना है. अगर stock downtrend में है तो क्या एक्शन करना चाहिए और स्टॉक अप ट्रेंड में है तो क्या एक्शन करना चाहिए. देन एक डिमांड और सप्लाई जोन एक स्टॉक हमेशा क्रिएट करके चलता है. तो जैसे अभी निफ्टी पे है कि आपका ऑल टाइम हाई एक रेफरेंस बना हुआ है पिछले 5-6 दिनों से कि कभी 2 पॉइंट से बचता है कभी 10 पॉइंट से बचता है. तो वो एक बेसिकली एक सप्लाई जोन है जिसपे मार्केट रिएक्ट कर रहा है. सिमिलरली नीचे जब आता है मार्केट तो एक डिमांड जोन पे आता है और यूजुअली जो हमारे एफएनओ स्टॉक्स हैं वो एक रेंज बना के ही रखते हैं कि एक सेट सा पैटर्न हो जाता है कि 18,200 है 18,500 है और एक रेंज बना के रहेगा फॉर बिगर पीरियड ऑफ टाइम. तो जैसे हम कई बार बोलते भी हैं कि मार्केट रिमेन्स रेंज बाउंड 80% ऑफ टाइम एंड मार्केट इज ट्रेंडिंग ओनली 20% ऑफ टाइम्स. तो 80-20 वाला प्रिंसिपल इसमें रेंज और ब्रेकआउट वाले फेज में भी लगा रहता है. तो हमारा फोकस इसमें रहेगा स्टॉक्स में कि हम कहाँ पर हैं, डिमांड जोन पे है या सप्लाई जोन पे है. अगर सप्लाई जोन पे है तो वी विल बी लुकिंग टू क्रिएट पोजीशन इन अ वे कि हम एग्जिस्टिंग ट्रेड को हल्का कर रहे हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो कि टाटा मोटर्स का 2 लॉट जितना क्वांटिटी है कैश में. तो मैं चाहूंगा कि अगर रेजिस्टेंस पे है तो मैं वो स्टॉक को आधा कर दूं वहां पे क्वांटिटी को और वापस अगर नीचे आता है तो मैं उसको वापस खरीद लूंगा. या फिर डिमांड हाँ, या फिर मेरे पास 2 लॉट जितना क्वांटिटी है पर मेरा कैपेसिटी है कि मैं उसमें 3 लॉट तक मैं खरीद सकूं. तो मैं ऊपर अगर बेरिश ट्रेड भी बनाता हूं तो अगर वो लोअर एंड पे आ जाता है रेंज जो मैं डिफाइन करूंगा ट्रेड स्ट्रक्चर्स में दिखा के तो मैं एक और क्वांटिटी उसका खरीद पाऊँ. तो बेसिकली एक हम साइज डिफाइन करके चलेंगे कि 2 लॉट है तो मैं उसको 1 पे ले आऊंगा या 2 है तो उसको मैं 3 पे ले जाऊंगा.
अगर नीचे आएगा तो हम उस तरीके से यूज करेंगे डिमांड सप्लाई जोन्स का, और एक कंपैरिजन भी करेंगे कि सिंपल कॉल सेल एट रेजिस्टेंस कर दें या फिर सिंपल पुट सेल एट सपोर्ट कर दे, तो उसमें और ये वाली अप्रोच में क्या डिफरेंशियल हमारा आएगा। तो एक ये कुछ डाउ थ्योरीज के चार्ट है। देन कुछ छोटे मोटे कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, बहुत बेसिक है। पिन बार फॉर्मेशन यूजुअली सपोर्ट के अराउंड होता है तो हम उसको बुलिश कंसिडर करते हैं। देन अगर सेम आपका हाई वॉल्यूम कैंडल रेंज हाई पे होता है और उसका जब हम लो ब्रेक करते हैं तो उसको बेरिश कंसिडर किया जाता है। देन एक ये पैटर्न है जो मैं काफी फॉलो करता हूँ, विच इज रमेश सुदेश बेसिकली। उसमें क्या होता है कि स्टॉक अपना सपोर्ट पहले ब्रेक करता है और फिर नेक्स्ट डे ही वापस रेंज के अंदर आ जाता है। तो ये भी एक काफी अच्छा पैटर्न है जिसमें एक इल्यूजन मिलता है कि भाई कल तक सेलर कंट्रोल में था और आज एकदम से वो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया और अब ट्रेंड ऊपर का हो गया। सो इसको अगर हम डेली चार्ट पे ऑब्जर्व करते हैं तो इट आल्सो गिव्स अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड बेस्ड एंट्री, और स्टॉप लॉस हमारे को फिर डिफाइन हो जाता है कि ये नीचे जो लोज है वही लॉन्ग्स के लिए स्टॉप लॉस है। सेम फॉर्मेशन ऊपर भी होता है फॉर सिमिलर थिंग कि एक दिन ब्रेकआउट दिया और नेक्स्ट डे बैक इनटू रेंज, तो वो फेलियर कंसिडर किया जाता है उसमें, फेलियर एट रेंज हाई, तो उसको भी सेम तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो दीज आर सम टेक्निक्स जो हम अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक पोर्टफोलियो में यूज कर सकते हैं टू चर्न आउट, कि लो पे ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसमें साइज ऐड करने का देख रहे हैं, हाईज पे सेम फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसमें एग्जिट करने का देख रहे हैं। So bottom line is basically observing chart patterns, right? बिल्कुल बिल्कुल, एट अराउंड बाउंड्रीज के आसपास, कि भाई जो अपना सपोर्ट जोन है वहां पे हम बुलिश पैटर्न ऑब्जर्व करना है, जो रेजिस्टेंस जोन है वहां पे हमने अपना बेरिश पैटर्न ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो अभी इस पे आते हैं कि भाई कैश सिक्योर्ड क्या चीज होता है। तो बेसिकली ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो एफएनओ में लॉट साइज या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है वो हमारा लगभग 7 लाख 6 लाख के बीच में ऑन एवरेज फॉर एवरी एफएनओ स्टॉक होता है। तो अगर हम लेट से एक फ्यूचर लॉन्ग करते हैं किसी स्टॉक का, तो हमारे पास अगर 7 लाख रुपए हैं अकाउंट में, कि भाई हम उसको कीपिंग दैट अमाउंट इन आवर ट्रेडिंग अकाउंट, की कल को मेरे को उसकी डिलीवरी उठानी है तो मैं फ्यूचर से निकाल के पोजीशन को कैश में उतना ही परचेज कर लूँ। तो वो कैपेसिटी जब होती है तो उस फॉर्मेट को हम कैश सिक्योर बोलते हैं, कि भाई जो मेरा ट्रेड है वो लेवरेज नहीं है और मैंने उसको फंडिंग उसकी सिक्योर कर रखी है। देन दूसरा एक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जिसमें मेरे पास लेट से 2 लॉट जितना स्टॉक पड़ा हुआ है कैश उसमें, हाँ कैश में डीमैट अकाउंट में। तो मैं जब लेट से कि मैंने कोई कॉल सेल किया है या फिर मैंने लेट से फ्यूचर शॉर्ट किया है, तो मैं उस ट्रेड को कंपनसेट कर दूंगा विद माय एग्जिस्टिंग होल्डिंग, कि मैं होल्डिंग में से स्टॉक बेच दूंगा और जो मेरा फ्यूचर वाला ट्रेड है मैं उसको पेयर करके क्लोज कर दूंगा। क्योंकि लेट से कि हमारे पास लेट से 5,000 शेयर पड़े हुए हैं अशोक लीलैंड के, और अभी वो रेट चल रहा है उसका 160 रुपए अप्रोक्सीमेटली, और मैं मान लो फ्यूचर में उसको शॉर्ट कर देता हूँ 160 पे ही, तो अगर वो स्टॉक 170 जाएगा तो वर्चुअल टर्म्स में तो 5,000 इंटू 10 मेरा कैश में गेन आएगा और 5,000 इंटू 10 मेरा फ्यूचर में लॉस आएगा। तो बेसिकली वो ट्रेड कहीं नहीं जाता, सो इट इज नॉट गिविंग अ लॉस इन रियलिटी। तो उसी फैक्टर को हम यूज करेंगे कि जब हमारा बेरिश व्यू किसी चीज पे बनेगा तो हम उतना ही क्वांटिटी सेल करेंगे, या जैसे चर्न करना लेट से 50%, मेरे पास 2 लॉट है तो मैं एक फ्यूचर शॉर्ट कर दूंगा। तो अगर वो ऊपर भी जाता है, इवन इफ इट गोज अगेंस्ट माय व्यू, तो मैं अपना हाफ क्वांटिटी कैश का निकाल के वो ट्रेड को पेयर करके क्लोज कर दूंगा। तो दैट इज लाइक अ churning होगा, and then again we can start a process of acquiring the shares back in future। तो जो जब हमारा स्टॉक निकलता है पोर्टफोलियो से, लेट से क्वांटिटी हाफ हो गया, तो उसमें हमारा नेक्स्ट एक्शन होगा कि वो क्वांटिटी को वापस रिफिल करने के लिए।
तो जो नेक्स्ट ट्रेड हम उस स्टॉक में करेंगे वो हमारा विल बी उसका पर्पज ये होगा कि वो क्वांटिटी वापस लेके आनी है, दो क्वांटिटी। ऐसा है क्या कि बेसिकली यू आर आइडेंटिफाइंग अ स्टॉक व्हिच इज गुड टू होल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, ऐसा इज दैट द बेसिस टू स्टार्ट विद? यस, सो बेसिकली हम उन्हीं स्टॉक्स में ये ट्रेड करेंगे जो हमारे को अपने पोर्टफोलियो में रखने हैं। तो लेट्स योर गुड स्टॉक्स कि भाई रिलायंस है आपका, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, देन योर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सो लार्ज कैप्स, लिक्विड, एंड वन इज फेयरली ओके कीपिंग देम फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। तो उस तरीके के स्टॉक्स में हम ये वाला काम काफी आसानी से कर सकते हैं। सो मतलब काफी लोग होते हैं जिनके पास इंडेक्स के जो स्टॉक्स हैं वो डिलीवरी में अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। सो दैट इज समथिंग आई थिंक ये जो अपना क्या बोलते हैं एक्सपायरी पे जो कैश डिलीवरी वाला भी काम होता है ना, कि आप टर्म याद नहीं आ रही मेरे को क्या है एग्जैक्ट उसके लिए, कैश सेटल्ड, हाँ, सेटलमेंट जब होती है तो आप यू कैन एग्जिट योर स्टॉक्स आल्सो ऑन एक्सपायरी। तो लेट्स से आपने रिलायंस 300 क्वांटिटी फ्यूचर में शॉर्ट किया हुआ है, तो आपके पास अगर कैश में है आप उसको एक्सपायरी पे कैश वो अपना स्टॉक उसको दे सकते हो और फ्यूचर वो पेयर हो जाएगा आपका। बेसिकली डिलीवरी देना और लेने का काम एक्सपायरी पे आपका इस तरीके से अच्छे से हो सकता है। राइट। सो सारा जो स्ट्रैटेजी अभी तक या जितने भी हमने बात करी है उसके अराउंड दो चीजें कॉमन है कि पोर्टफोलियो में स्टॉक है, और दूसरा ये कि हम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी हैं, एंड एवरीथिंग इज एडिशनली ये भी है कि इट हैज टू बी लिक्विड इन ऑप्शंस, राइट? यस। सो इंडेक्स स्टॉक्स जो लार्ज कैप्स हैं या जितने भी हमारे फेयरली डिसेंट कंपनीज है, सबके ऑप्शंस लिक्विड होते ही हैं, एंड दे आल्सो डोंट गो इनटू बैन एंड ऑल, रेयर ही जाते हैं वो स्टॉक्स बैन में भी। I mean, I have not seen Reliance going into F&O ban or ICICI Bank going into yeah. So वो चीज भी है। देन और तीसरा ये था कि वो कैश कंपोनेंट हमारे पास होना चाहिए टू एग्जीक्यूट दो ट्रेड्स। तो एक एग्जांपल लेके शुरू करते हैं सीधा पहले एक बार कि किस तरीके से ये एक्टिविटी को हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से हम कोटक बैंक की बात करते हैं कि भाई ये जो स्टॉक है ये एक गैप सपोर्ट पे है, एंड लेट्स से हमें इसको एक्वायर करना है। मतलब मेरे पास लेट्स से मेरे पास 2 लॉट है और मैं इसका 1 लॉट या 2 लॉट और खरीदना चाहता हूँ। तो उसका एक काफी सिंपल सा तरीका है कि हम एक ट्रेड इनिशिएट कर देंगे जिसमें वी आर एक्चुअली, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, दो अप्रोच में लूंगा, दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा। सो कोटक बैंक मैंने फ्यूचर्स में लेट्स से मैंने 2 लॉट खरीद लिया, और अभी मैं इसका फिर एक ऑप्शन में सेल करूंगा 1900 का कॉल ऑप्शन ऑफ द सेम। दिस विल बी फॉर जुलाई एक्सपायरी, राइट? यस यस। तो जुलाई वाला ले रहा हूँ क्योंकि जून वाले में अभी एग्जांपल में वो पे ऑफ ही नहीं बनेगा ढंग से। हाँ, एग्जैक्टली, इट इज टू क्लोज। या हाँ, तो एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द स्ट्राइक प्राइस? ये राउंड फिगर है, और दूसरा ये है कि इसमें कि इतना हम डिस्टेंस रखेंगे कि लेट्स से कि एक रेशियो लिया मैंने, 2 फ्यूचर लिए हैं, 3 कॉल लिए हैं, तो ये जो मेरा ब्लू लाइन है पीएनएल वाला डेल्टा लाइन, ये हमारा ग्रीन में रहे व्हेन इट एक्चुअली मूव्स इन फेवर ऑफ द ट्रेड। ओके। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वर्चुअली वी आर बाइंग 2 फ्यूचर्स और हम 3 कॉल सेल कर रहे हैं। तो इसने एक बहुत बड़ा रेंज क्रिएट किया विच इज लाइक 40 रुपीज डाउन करंट मार्केट प्राइस से, और ऊपर लगभग 240 रुपए। तो अगर मेरे को ये स्टॉक एक्वायर करना है इज द फर्स्ट क्वेश्चन, तो मैं इस तरीके से अगर करता हूँ तो मेरे को 2040-2080 तक कोई लॉस नहीं है। उसके बाद भी अगर ये जाता है तो वी टॉक्ड अबाउट कि मेरे पास ऑलरेडी 2 लॉट हैं, तो वो उसको हम फिर डिलीवरी में निकाल देंगे उस क्वांटिटी को, या राइट।
अगर ये ऊपर गया, ये वाला केस हमने डिस्कस कर लिया, तो ये वाला प्रॉफिट आएगा और एक क्वांटिटी हमारी घट जाएगी, तो वो ट्रेड Correct. वहां सेटल हो गया। अब बात आती है कि ये नीचे गिर गया तो क्या करेंगे, तो हम ये क्वांटिटी खरीद लेंगे और हमारा फिर भी एवरेज कॉस्ट जो होगा वो 1811 पे ही आएगा, विच विल बी एक्चुअली वे लोअर देन 1850 जहां पे ये स्टॉक अभी चल रहा है। अब दूसरी अप्रोच पे आते हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई एक कैश सिक्योर्ड पुट भी तो कर सकते हैं, कि हम 1850 का इसमें सिंपल हम पुट सेल कर दें। शायद इसमें स्ट्राइक होता नहीं है, कोटक में 1850 का 1840 होगा। हाँ 40 होगा सर। हाँ, तो जब मैं ऐसा करूंगा तो मेरा एक तो मैक्स प्रॉफिट जो होगा उस ट्रेड में, अगर वो ऊपर गया तो वो केवल 15,000 होगा। अगर मैं सेम को 2 लॉट पे करता हूँ फॉर सेम कंपैरिजन, तो वो 30,000 31,000 रुपए मेरा मैक्स प्रॉफिट हो गया ऊपर में, अगर वो ऊपर गया तो, विच इज एक्चुअली लोअर देन जो हम यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा लगभग 100% का डिफरेंशियल है। देन जो पॉइंट आता है कि नीचे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो इसमें बेटर है, कि हम इधर में 1811 पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ रहा था, इसमें 1801 आ रहा है, राइट। बट पॉइंट आया कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इसमें लोअर है, उसमें हायर है, एंड उसमें अगर वो रेंज को भी क्रॉस करता है तो हमारा एक लॉट हमारा जो कैश में है वो भी निकल जाएगा, तो वो भी एक पॉइंट हमें कंसिडर करना चाहिए इसमें। तो एक तो ये डिफरेंस हुआ। देन दूसरी अप्रोच जो काफी अनपॉपुलर है वो ये है कि कॉल खरीद लीजिए। उसमें उसमें क्या होता है कि इतना सेल किया वो बाय करना पड़ेगा। हाँ, हाँ तो उसमें क्या होगा कि दैट विल बी मोर रिस्की, और उसमें हमारा ब्रेक इवन 1901 से स्टार्ट होगा। हाँ नेचुरली। तो ये हमारा एक लगभग 90 रुपए का गैप क्रिएट हो गया फर्स्ट वाले एग्जांपल से, एंड लगभग 100 रुपए का गैप क्रिएट हो गया फ्रॉम पुट वाले एग्जांपल से। तो ये इसका पे ऑफ तो बहुत अच्छा लगता है, बट इसमें रिस्क जो है वो ज्यादा है। और हमने जो बात स्टार्ट करी थी वो इसी से थी कि हमने पैसा देना नहीं है, हमने वो तरीका देखना है जिसमें हम या तो क्वांटिटी निकाल रहे हैं या क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। ये लॉस की हमारी बात नहीं। Safety is also important. It is not high risk hero to zero call or something like that. Zero to hero. करेक्ट, तो हमने वो अप्रोच नहीं करना, बट दिस इज व्हाट लाइक मेनी और यू कैन से मोस्ट पीपल डू, कि वो कॉल ही बाय करना प्रेफर करेंगे रादर देन डूइंग द अदर टू थिंग्स, जिसमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ विन है, एंड इफ cash is there then security is also there. And another disadvantage of buying the call is you are talking only about July expiry. Who knows if it still goes up further in August? You'll have to make a fresh trade. Again you have to pay the premium, again you have to take the 30-40,000 का risk, and if it works or doesn't work पता नहीं, तो probability of winning consistently by buying this one is less. Then we have like many options, जैसे इसमें हमने बात करी कि अगर ऊपर गया तो हमारा डिलीवरी निकल जाएगा और ये पैसा तो हमारे पास आ ही जाएगा, देन नीचे आया तो हम कैश में डिलीवरी उठा लेंगे, देन वी कैन अगर क्वांटिटी लेट से एबनॉर्मल हो जाता है, लेट से 3 लॉट हो गए एंड वी आर 4 हो गए, वी आर नॉट ओके होल्डिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तो हम उसको क्या बोलते हैं व्हीलिंग स्ट्रेटेजी में भी डाल सकते हैं ट्रेड को, कि जो एडिशनल क्वांटिटी एक्वायर किया उसमें हम कॉल शॉर्ट कर दें, तो लेट्स से 1820 किया या 1840 किया, तो नेक्स्ट मंथ में वो ट्रेड निकल जाएगा, उसमें नहीं निकलेगा, उससे अगले में निकल जाएगा, तो वो तरीके हैं। अब एक एग्जांपल हम बेरिश का ले लेते हैं, कि बेरिश अप्रोच अगर सेम मैनर में किया जाए इन अ पोर्टफोलियो स्टॉक तो उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो उस केस में मैं रेंज हाई पे जो स्टॉक है उसका एग्जांपल लेता हूँ,
लेट्स से टाटा मोटर्स, चार्ट पे दिखा देता हूँ पहले। तो टाटा मोटर्स इज एक्चुअली एट अराउंड इट्स ऑल टाइम हाई, 605 के अराउंड है। और लेट्स से कि सेम लॉजिक है कि हमारे पास इसके 2 लॉट जितना कैश में है और वी वांट टू सिक्योर इट, और हमें लगता है रेजिस्टेंस पे है और गिरने वाला है। तो सेम ट्रेड को हम इसमें भी कर सकते हैं कि हम जुलाई वाले फ्यूचर के लेट्स से 2 लॉट हमने शॉर्ट किए एंड वी थिंक दैट कि 550 या 540 जो है वो इसका एक सपोर्ट एरिया है, एंड उसके अराउंड हम काफी कन्वीनियंट रहेंगे टू परचेज इट ऑल्सो। तो मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसमें मैंने 2 फ्यूचर सेल करे हैं और मैंने 3 नीचे की पुट सेल करी है 550 की। तो इस ट्रेड में लेट्स से कि इट गोज अप एज द फर्स्ट पार्ट। तो इफ इट गोज अप देन जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि मेरे पास 2 लॉट हैं, तो 575 से लेट से 600 चला गया, तो 25 रुपए का गेन मेरे को कैश में आएगा, 25 रुपए का लॉस मेरे को इसमें आएगा, वो आपस में पेयर हो जाएगा। बट ये 550 का जो पुट मैंने बेचा है ये पैसे मेरे पास आ जाएंगे। But the basis of all this is you already have in cash worth 2 lots, right? This is not a standalone strategy for the stock. Yes. So वही मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास 2 लॉट 3 लॉट जितना क्वांटिटी कैश में हो, तो हम we can either look to reduce the quantity in one kind of trade, and in other kind of trade we can look to acquire more quantity. तो जैसे कोटक के एग्जांपल में था, वी वर लुकिंग टू एक्वायर मोर क्वांटिटी क्योंकि वो सपोर्ट के पास था, एंड इन टाटा मोटर्स सिंस वो रेजिस्टेंस के पास है, तो वी आर लुकिंग टू डिस्पोज ऑफ क्वांटिटी व्हिच वी हैव। तो ऊपर जाता है तो भी क्वांटिटी डिस्पोज ही हो रही है, राइट? अगर ये ऊपर डिस्पोज करने के लिए, एंड यू आर आल्सो लुकिंग टू ऐड एट सपोर्ट इफ इट कम्स डाउन। हाँ, तो अगर ये ऊपर जाता है तो मेरा क्वांटिटी निकल जाएगा और फिर भी मेरे को पुट से एडिशनल 10 रुपए का गेन आएगा। देन अगर ये नीचे आता है तो इट विल हेज, तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, बट एक अच्छा खासा ये गेन का स्कोप क्रिएट कर देता है इन बिटवीन। रेंज की बात करें तो 470 तक का रेंज है, विच इज लाइक 120 पॉइंट्स अवे फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। तो अगर डिलीवरी लेने का भी बात आएगा तो पूरा ट्रेड में 470 का कॉस्टिंग हमारे को वो स्टॉक का पड़ेगा इन द नेक्स्ट ट्रांच जो हम उसका ऐड कर रहे हैं, और वो भी डिलीवरी का जो ऑब्लिगेशन है वो 1 लॉट का ही है इसमें। ठीक है, तो एक ये पॉइंट होगा। अब इसको भी सेम तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं कि लेट्स से हमारा बेरिश व्यू है, तो व्हाट इज द आइडियल थिंग दैट पीपल डू, वो कॉल सेट कर देते हैं। सिंपल सा होता है कि एक तो कॉल सेल कर दो आप कि भाई रेजिस्टेंस लेना है स्टॉक, और जो कॉल का प्रीमियम है वो अपनी जेब में आ जाएगा अगर स्टॉक नीचे रहता है। एंड इसमें लेट्स से 580 का ही सेल करते हैं हम एक बार। तो इसमें एडवांटेज ये होगा कि लेट्स से ऊपर गया तो हमारा क्वांटिटी निकल जाएगा, एंड क्या नाम है, सेम तरीका है कि क्वांटिटी निकल जाएगा और 56,000 एडिशनल आ जाएगा क्योंकि वो तो प्रीमियम कलेक्टेड है हमारे पास। अगर नीचे आता है, डाउनसाइड का मूव आता है, तो हम 56,000 इसमें मैक्स गार्नर कर सकते हैं। जबकि इसमें सेम वही 2x है हमारा जो अमाउंट मैक्सिमम गार्नर कर सकते हैं वो 2x है। ये जो रेशियो है टू फ्यूचर्स वर्सेस 3 ऑप्शंस, ये दिस इज अ स्टैंडर्ड रेशियो कि अलग-अलग चेंज हो सकता है? स्टैंडर्ड 1.5 का रेशियो मैंने रखा हुआ है अभी। अगर हम थोड़ा और लेट्स से दूर का करते हैं तो 5 भी कर सकते हैं, 2:5 भी कर सकते हैं, बट वो फिर थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है कि अगर आपके पास उतना क्वांटिटी नहीं है, फिर आप ट्रेड मैनेज करने के लिए जाओगे, फिर वो कहीं लॉसेस बुक होंगे। तो ये थोड़ा सा सिंपलिस्टिक अप्रोच है कि उतना ही करो जितना हम डाइजेस्ट कर सकते हैं उस साइज को।
Correct. कि इतना हम एग्जिट कर रहे हैं और इतना हम ऐड करेंगे। तो इसमें कॉल सेलिंग में वी आर नॉट लुकिंग टू बाय द क्वांटिटी, तो Yes. वो है डिसएडवांटेज। इसमें हम बाय का भी देख रहे हैं विच इज एट 470 लेवल्स, तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ। देन एक जैसे आप बोल रहे थे अभी कि हम हेज करना है तो हम पुट बाय कर लेंगे, Yeah. कि वही 570 का हमने पुट ऑप्शन बाय किया। तो इसमें प्रॉब्लम इज कॉस्ट, कि हम एक 56,000 का प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो दैट विल गेट रिड्यूस्ड फ्रॉम आवर होल्डिंग की वैल्यू में से ऑटोमेटिकली। तो हम बेसिकली 550 से शुरू कर रहे हैं ट्रेड को, जब हम 570 पे हैं, तो हमने पैसे दिए हैं इंश्योरेंस के, और ये प्रोटेक्ट तो उसको कर ही लेगा फिर, तो उसमें कोई चैलेंज है नहीं। बस पॉइंट फिर ये है कि वी आर पेइंग अ प्रीमियम टू सिक्योर आवर ट्रेड, जिस तरीके से हम कॉल परचेज में कर रहे थे, सेम पुट परचेज में कर रहे हैं। Right. टारगेट तो हमारा ये है नहीं कि हम बीच बीच में ऐसे 20-20 रुपए देते रहें, और कॉस्ट क्या मतलब अपना जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू ही इरोड हो रहा है बेसिकली इसमें। फिर इट इज Yeah, प्रोटेक्टिंग, in any बट case, buying naked options, whether it is call or put, it is always going to be for the short term, few days, 3 days, 4 days. That's all. Only या there is momentum. करेक्ट, और डू इट इन अ स्ट्रेटेजी फॉर्म, कि भाई 2 खरीदे हाँ 3 वही. बेचे, सो डू एनीथिंग लाइक दैट, कि एक ट्रेड लिया, उसमें रिस्क डिफाइन किया और उस तरीके से किया। बट दिस जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज अ कॉम्बो ऑफ योर कैश, योर होल्डिंग्स, एंड देन ट्राइंग टू क्रिएट अल्फा आउट ऑफ इट विद Yeah. रिस्पेक्ट टू कि स्टॉक हमें ऐड करना है इधर या स्टॉक हमें सब्ट्रैक्ट करना है इधर, एंड एवरीथिंग इज बेसिकली इन अ सिक्योर्ड मैनर, कि क्वांटिटी है, ऊपर गया तो भी समझ जाएगा ट्रेड, नीचे गया तो भी समझ जाएगा। तो बेसिकली अप्रोच इन विच वी आर नॉट रिस्किंग टू मच। एंड Let's say, just for the sake of example, let's say Tata Motors ऊपर जाता है, तो you said you will dispose of your cash holding, but with a view to buy it again at support, maybe later August, September, whenever. करेक्ट। तो जिस तरीके से हमने वो कोटक वाला जो ट्रेड इनिशिएट किया था, हाँ. तो हम उस तरीके का भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं टू बाय इट बैक। तो लेट्स से हमारा इस महीने में होल्डिंग निकल गया, तो हम नेक्स्ट मंथ में इस तरीके से सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। तो वही 20-30 रुपए नीचे का हमारा एक एंटी एडवांटेज उसमें हो जाएगा, और उस पॉइंट पे फिर हम ये जो कॉल है उसको फिर रेशियो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमारा क्वांटिटी निकल चुका होगा और हमारे पास नहीं है, तो हम फिर उसको रेशियो नहीं करेंगे। हाँ, exactly. Then you have to do it like a cash secured put only. करेक्ट करेक्ट। अब वो पुट ही हो गया एक तरीके से, इट इज अ पुट ओनली। सो अभी कुछ रिसेंटली ये ब्लॉक डेज और बड़े बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, तो कुछ स्टॉक्स पे मेरा व्यू जैसे काफी बुलिश हो गया। तो लाइक इन एसआरटी मैंने एक ट्रेड किया था जिसमें सेम अप्रोच फॉलो किया था, कि 2 फ्यूचर खरीदे, 3 कॉल बेची, एंड उसको ट्रेड को बुलिश रखा इन अ मैनर कि मेरे को एक अच्छा खासा लंबा रेंज भी दे रहा है, एंड ऑन द वे अप मैं उसको एग्जिट भी कर रहा हूँ, एग्जिट भी कर पाने का कैपेसिटी बन गया उस ट्रेड में। सो इसमें श्रीराम में क्या था कि मेरे पास वो स्टॉक है नहीं, और अगर मेरे को ये खरीदना है तो दिस इज प्रोवाइडिंग मी एंट्री ऑफ 1662 Right. का मैं कॉस्ट निकाल रहा है, कि मेरा 1662 का पड़ेगा। स्टॉक चल रहा है अभी 1715 पे, सो लाइक 50-55 रुपए का एडवांटेज दे रहा है। देन अगर ये यहीं पे क्लोज भी हो जाता है स्टॉक इस रेंज में, तो एक अच्छा खासा M2M गेन भी दे रहा है स्टॉक विदाउट इवन बाइंग इट। और ऊपर जाता है तो द ब्लू लाइन इज सो गुड दैट ऑन द वे अप इट विल अगेन गिव यू एग्जिट, और आपको ये रेंज का भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। सो इसमें अप्रोच ये था कि डाउनसाइड को कैश सिक्योर्ड वे में हैंडल कर लिया जाएगा, एंड अपसाइड में तो एग्जिट मिल ही जाएगा, because it is a very decently bullish structure and upside will give you exit on the way up.
तो उसमें वो इतना प्रॉब्लमेटिक फॉर्म में आएगा नहीं कि कैश में अगर नहीं है तो फिर कैसे हैंडल होगा। तो ये ट्रेड को अभी मैंने जून सीरीज में ही कर दिया क्योंकि आईवी बढ़ गया था स्टॉक का टू सर्किट टू सर्किट। तो इतना अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ कि करंट प्राइस पे ही इट इज हैविंग अ मैक्स पे आउट ऑफ 11%, जो हमें कोटक या टाटा मोटर वाले ट्रेड में नेक्स्ट मंथ में दिख रहा है। तो ये तो और बेटर है क्योंकि ये तो 4 दिन में ही अपना पे ऑफ दे देगा। तो अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी किसी स्टॉक में होता है विच वी हैव, तो उसमें नियर वाले ऑप्शंस में भी हम नियर वाले ऑप्शंस में इसी तरीके को कॉम्बो करके वी कैन कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटी फॉर द एग्जिस्टिंग होल्डर्स। Then this is another trade that I took today. Chambal fertilizer पे व्यू बुलिश था, देन सेम अप्रोच है कि ऑन द वे अप तो एग्जिट दे ही देगा एंड ऑन द वे डाउन यू आर पुटिंग इट एज अ कैश सिक्योरिटी। हाँ, कि भाई सपोर्ट के पास ही है, योर 270 इज अ डिसेंट सपोर्ट। देन आई बॉट इट एट डे हाई 283 पे खरीदा था, बट स्टिल इट वाज गिविंग मी एंट्री एडवांटेज कि भाई सारा कुछ रेशियो देख के इट इज लाइक 272 का एंट्री एडवांटेज है नेट कॉस्ट जो है, और M2M विल बी देयर टेम्परेरीली, बट इफ इट गोज अप देन इट गिव्स मनी, इफ इट स्टेज देयर तो इसको कैश में खरीदना है। देन सेम नेक्स्ट मंथ का ऑप्शंस से सेल करके आप व्हीलिंग में उसको ट्रेड को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन दिस वन इज ये कोटक का तो मैंने अभी लाइव एग्जांपल दिया ही आपको, सेम पे ऑफ है। तो ये सर दिस इज just one, this was a very interesting way to approach to acquire or dispose of stocks which you have in your portfolio, right? But just for a second, if I take a case where a lot of people are talking about top ho gaya, and let's say market really tops out here and we start a big correction. In that case, what will you do with these stocks? तो ये जो टाटा मोटर टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, मैं ये वाला अप्रोच फॉलो करूंगा। So that you will keep doing. I mean, I'm just, I'm not saying it is going to happen, but let's say we are in a downtrend for the next few months, for example. So this is, automatically giving us a 20% type से downside का protection, these trades. But मतलब ये जुलाई का है तो you will have to make a fresh new structure for August, then again for September, like that. हाँ, तो उसमें क्या होगा कि आप जुलाई में गेन कुछ कैप्चर करोगे तो जो नेट हमारा जो कलेक्शन हो रहा है वो कलेक्शन तो बढ़ता ही जा रहा है। सो वी विल मेक सम मनी इन जुलाई अगर डाउन आया, इफ इट स्टेज इन द रेंज एंड रेंज को क्रॉस नहीं किया, वी कैन क्रिएट द सेम स्ट्रक्चर इन ऑगस्ट अगेन। तो उसमें क्या होगा कि इफ वी टेम्परेरीली पुट दैट M2M इनटू दिस जो अगस्त का बनाएंगे, तो ये जो डाउनसाइड का ब्रेक इवन है दैट विल बी इवन मोर फर्दर डाउन net off. Yeah, only thing is, let's say July to ho gaya, August mein you'll have to look at the chart fresh with and identify the new fresh demand and supply levels. What so, maybe the levels which are there right now might not be valid. It might because the price might be different than what it is now. Again, this is also a factor of our inventory management की तरीके से भी हम देख सकते हैं कि हमें डिस्पोज करना है तो this is a better way to dispose. अगर हमें एक्वायर करना है then again acquiring at lower level maybe this is a better approach, और it works both way. अगर ये बेरिश के लिए स्ट्रक्चर है और ये कोटक वाला जो एग्जांपल था वो बुलिश के लिए स्ट्रक्चर का एग्जांपल था कि परचेज करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, डिस्पोज करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, एंड बोथ स्ट्रक्चर्स हैव द सेम क्वालिटी कि इसमें डिस्पोज भी हो रहा है और इसमें एक्वायर भी हो रहा है। अगर ये पूरा स्ट्रक्चर क्रॉस हो जाएगा तो इसमें एक्वायर भी हो जाएगा और बीच में रहेगा तो डिस्पोज हो जाएगा, और कोटक वाले में भी सेम है, नीचे आया तो एक्वायर हो जाएगा और पूरा क्रॉस कर गया तो डिस्पोज भी हो जाएगा एग्जिस्टिंग होल्डिंग। सो वही इन्वेंटरी मैनेजमेंट ही हो रहा है ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक्स, and we are just using cash to facilitate this and generate some alpha out of the holdings and the cash. That is exactly what I saw from the payoff graph. You are not taking any undue huge risk. You are managing your risk, and within that you are playing the range. Correct.
So that is extremely important because a lot of people, sort of almost blindly buy futures and then keep asking if the resistance kidhar hai, support kidhar hai. So that is not you're aware of the complete chart structure of that underlying, and then you're creating an options trade based on that. Yeah. So इसमें worst case और best case यही है कि worst case you will get delivery, best case you will give delivery if you want to buy or sell. So again, I repeat, because a lot of people who are into the stock market in the last few years, for them it is all a game of T20. This is not a T20 game. This is more of maybe a one day or a test match game where you are here for the long term and not just one or two trades. You have to do it, keep doing it month after month, and then only look at consistent and steady gains. Yeah, this is something actually which I think already being followed by people who have large exposure to markets, because उनके पास stocks तो होते ही हैं, तो थोड़ा churning in, churning out, they always do. So like mutual funds, they keep large holdings. तो वो ये एक अच्छा तरीका है dispose करने का भी और अच्छा तरीका है to acquire also. और again पॉइंट वही है कि जो मार्केट में पैसा बनाता है वो थोड़ा बोरिंग मेथड ही फॉलो करता है. So this is that is a very important point. Good trading, successful trading has to be boring. If it is exciting, it is not trading. करेक्ट. सो इसमें काफी ये बोरिंग सी अप्रोच है और मैकेनिकल है पूरा कि सिंपल सा है कि भाई खरीदना है कि बेचना है और ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है और पैसा है, स्टॉक ज्यादा हो गया तो कॉल बेच दो उसको डिस्पोज करने के लिए और इसी तरीके से. तो दिस इज ए डिसेंट अप्रोच और मैं इसको कर रहा हूँ फॉलो इन माय अकाउंट आल्सो. तो सेम कंडीशन अगेन विल ऑलवेज बी सेम कि भाई आपके पास कैश होना चाहिए टू परचेज इट और आपके पास स्टॉक होना चाहिए टू डिस्पोज इट. अगर लेट्स से कि हमारे पास स्टॉक नहीं है टू डिस्पोज, तो हम ये ब्लू लाइन जो फॉलो कर रहे हैं हम उसको फॉलो करके वी टेक एग्जिट देन. हम फिर एंड तक वेट ना करें कि रेंज पूरा कंप्लीट हो गया उसके बाद देख रहे हैं कि अब क्या किया जाए. हमें पता है कि हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हमें ये ब्लू लाइन फॉलो करके फिर एग्जिट लेना है ट्रेड में से. Till it is rising we hold, when it starts dipping we take exit. That brings me to a very interesting point, because we get a lot of emails or phone calls talking about the payoff structure, and a lot of people don't know how important is that blue line, that T+0 line. That is the most important part of the payoff graph, and not the green and red shaded areas, because that is only what will happen if it is still expiry. But what is happening on a day-to-day basis is told by the T+0 line. Correct. So like in case of this Tata Motor example also, कि अगर हम इस blue line को follow करें तो ये 550 अगर लेट्स से आज ही आ जाता है तो it will give a green of 38,000. और if it keeps on going down, so at one point it will max out. ये 520 पे max out हो जाएगा and it will start dipping after that. और अगर आपको उस पॉइंट पे पता है कि भाई आपको नहीं खरीदना है स्टॉक, फॉर एग्जांपल आपको नहीं खरीदना, तो यू फॉलो द ब्लू लाइन, यू एग्जिट, टेक एग्जिट बेस्ड ऑन दैट कि भाई ये मेरा मैक्स इतना बन रहा है और मेरे को ये एग्जिट करना है. बिकॉज दिस इज अ ट्रेड व्हिच इज डायरेक्शनल इन नेचर and that blue line is actually favoring us a bit more than expected. काफी अच्छा. That blue line will change the shape depending on the volatility, right? इसको अगर लेट्स से मैं ज्यादा क्वांटिटी कर देता हूँ पुट्स का, तो ये जोन में अमाउंट तो बड़ा बना देता है, बट द ब्लू लाइन इज ऑफ वेरी बैड शेप. वो 530-540 पे ही डिप हो जाएगा और इट विल बी देन अ वेरी लेवरेज्ड ट्रेड. लेवरेज आ जाएगा इसमें और हमारे पास लेट्स से कि हमें नहीं खरीदने 3 लॉट जो मैंने एक्स्ट्रा बेचे हैं, देन इट इज अ लेवरेज ट्रेड और उसमें फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी कि यार ये तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, इतना मेरे को नहीं चाहिए टाटा मोटर. In fact, beyond the range, it becomes a very high risk trade. तो वो तो फिर वो घूम फिर के वही बात होगी कि वी आर डूइंग सेम, वही सट्टेबाजी कर दी इसमें भी घूम फिर के. तो रेशियो इसी तरीके से रखें, स्ट्राइक सिलेक्शन इसी तरीके से रखें कि ट्रेड उसी डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो आपको पैसा दे रहे हैं फ्रॉम डे वन. अपोजिट जा रहा है तो वी ऑलरेडी नो कि हमें क्या करना है, हमें डिस्पोज करनी है क्वांटिटी जो हमारे पास है, तो उसकी टेंशन ही क्या है, उसको वापस खरीद लेंगे.
So this helps in additional sort of steady income as well as churning your portfolio. Like you said, disposing of stocks at resistances, again buying them at supports, or Correct. maybe adding new stocks if you identify something which is very good at maybe a very good long-term support, something like that. Correct. Correct. So yeah, thank you, Deepak. It was a very interesting session, and I hope viewers will benefit from this. And for any questions, you can always approach him on Twitter, or you can comment on this video, and we will reply to that video. And we hope you like this video. Do subscribe to our channel, share it, and like it. Thank you. Thank you.